So today let us discuss about the notice period. Now, first of all, what is a notice period? First, we should know what is a notice period. See, notice period is a time an employee gives. Time means what? This time is actually the notice, which is called the notice period. This is a time frame an employee gives to an employer. Now, why does he gives the notice? Simply, the employee gives this notice or gives a notice period to an employer when he resigns from the service of an organization. He resigns. See, suppose an employee, for any reason, he wants to leave the organization. So what he will do? He will first simply go to the manager. Suppose ये एक employee है, he is willing to resign from his services for whatsoever reason. First, he will go to his supervisor. Okay. Now he will talk to him that he wish to resign. Supervisor, senior manager, whatsoever, the senior level. Now supervisor accepted his whatever he wants. So he accepted. Okay, ठीक है, you resign. Then he will resign from the services. Simply this person will resign from the services. Now, if this person resigns from the services, do you think that he will leave the job immediately? If this person resign on 31st of March, do you think that from 1st of April he is not going to come? Then what will happen to that level? Or what will happen to that profile if somebody is working in this profile? So this is an organizational chart and this person is working somewhere at this level. Okay. Now he told on 31st March that I wish to resign. Then he also accepted the same. His manager also accepted his resignation. Still, is it possible for the manager to find a substitute only in one day? It is not possible. And we all know that an organizational chart cannot be left blank. Every position is equally important. We all know, we have already studied about staffing. Staffing, we have understood the staffing staffing function is so very important. Now, what is staffing? I'm again repeating. Staffing is putting right people at right place. Okay. Now it simply means that all the positions, it simply means that every position must be filled up properly. If I leave any position blank in an organization, be it any position, आप कोई भी पोजीशन को ले लो तो वो अगर ब्लैंक होगी तो हमारे काम करने में बहुत दिक्कत आएगी, है ना? तो अगर ये वाला पोजीशन खाली रहता है, मे बी ओनली फॉर 7 days बिकॉज आई नीड टू सर्च अनदर वन, सो ये बहुत एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. सो स्टाफिंग इसी वजह से बहुत जरूरी है कि एवरी पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द पोजीशन आर इम्पोर्टेंट. ये लो या ये लो, एनी position, every position are equally important. Staffing must be done properly, means every position must be filled up with right people at right time, at right place, right time, right cause. So many factors are there in staffing. So here we need to understand that an employee gives the notice period. We understood that notice is required. Simply why notice is required? So that organization can simply prepare for its backup. Organization can simply prepare a proper backup. For this reason, it is important that a notice must be given. Now, notice is served by two types of employee. Now, we all know that employee are also of two types. We have two types of employee. Now, who all are they? First is, we all know there are casual staff and there are staff who are called in-house staff or permanent staff, right? अब ये जो casual staff हैं उसको हम लोग staff in या employee under probation भी बोलते हैं कभी कभी, और permanent staff they are confirmed staff.
प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन बोल सकती हूँ। कैजुअल स्टाफ का मतलब क्या होता है, कैजुअल मीन्स जो स्टाफ आइदर कैजुअली ऑन कैश बेसिस काम करते हैं, कभी उसको भी बोलते हैं। और प्रोबेशन मतलब होता है एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड जहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है वो ट्रेनिंग में होता है, एंड आफ्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द एम्प्लॉय। देखो क्या होता है, एक इनिशियल सोशलाइजेशन का फेस होता है। वंस एन employee enters into the organization, suppose employee enters into the organization, now both are suppose organization is understanding the employee and employee is also understanding the organization, so there is an initial socialization period, सोशलाइजेशन बोल सकते हो या आप उसको ट्रेनिंग बोल सकते हो, ट्रेनिंग एंड पीरियड, ट्रेनिंग एंड एडजस्टिंग पीरियड, और उसको मैं प्रोबेशन पीरियड बोल सकती हूँ। इन अ जनरल वेरी जनरल टर्म वी यूज दिस एज प्रोबेशन पीरियड, उसको प्रोबेशन में रखना बोलते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग पीरियड, उस टाइम में उसको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली, और अगर ट्रेन स्टाफ है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस स्टाफ है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। वो जो टाइम पीरियड होता है प्रोबेशन का, उसमें क्या होता है, आपके स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, इसी वजह से हम लोग उसको सोशलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन को तो एम्प्लॉय को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो हमारा राइट फिट है, राइट फिट वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, वी ऑल नो दैट दिस राइट फिट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि राइट फिट बहुत जरूरी है, राइट फिट इन स्ट्रैटेजी, राइट फिट इन एचआरएम, मार्केटिंग और एनीथिंग। तो वैसे ही राइट ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हिसाब से उनके पास एम्प्लॉयज होने चाहिए, और एम्प्लॉयज का भी अपना नेचर एंड कल्चर होता है, तो दोनों को एडजस्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज के संग कर रहा है, एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन के संग। अभी दोनों अगर कंटिन्यू कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, वो प्रोबेशन पीरियड जो इनिशियल सोशलाइजेशन पीरियड है वो खत्म हो जाता है, और सॉरी प्रोबेशन खत्म होके फिर ये आ जाता है कंफर्मेशन, जिसको हम कंफर्म्ड एम्प्लॉय भी बोलते हैं ना। अब ये जो रेजिग्नेशन भी होगा, अब रेजिग्नेशन के केस में भी आप देखो दो तरह के हो जाएंगे लोग, एक हो गए आपके प्रोबेशन वाले लोग जो अभी ट्रेनिंग में है, जो दो अभी जस्ट पहचान रहे हैं एक दूसरे को, तो प्रोबेशन में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इतना उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता है, ना ही उतनी अथॉरिटी होती है, तो उस टाइम में अगर कोई छोड़ता भी है तो उसको नोटिस जो है मे बी 15 days to 30 days मैक्सिमम, ठीक है। और अगर एक कंफर्म स्टाफ है, डिपेंडिंग ऑन हिज प्रोफाइल एंड ग्रेड, वो किस तरह के हैं, उन मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ notice that an employee, a confirmed employee need to serve to the organization, because डिपेंड करती है आप किस प्रोफाइल में हैं, किस ग्रेड में हैं, क्योंकि उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग। अब देखो आप एक ऑफिस असिस्टेंट को ले लो, सपोज एक कोई ऑफिस असिस्टेंट है, ही इज ऑल्सो कंफर्म्ड स्टाफ, बट इसकी प्रोफाइल में फुलफिल कर सकूंगी बहुत आसानी से, बट अगर मुझे बोला जाए वीपी फाइनेंस की पोजीशन को मुझे फुलफिल करना है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, इजंट इट? ये टास्क थोड़ा टफ होगा देन दिस, ये फिलअप करना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी देन अ वीपी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। तो कंफर्म स्टाफ जो है उनके जो रेजिग्नेशन का नोटिस पीरियड है वो भी 30 days, 60 days एंड 90 days होता है। अब इसमें डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बेंचमार्क आ जाता है, क्योंकि बेंचमार्क तो है ही, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एचआर फैक्टर भी तो मार्केट से ही इन्फ्लुएंस्ड है ना, अपने जो एचआर फैक्टर है, तो इंडस्ट्री, फिर द कंपनी यू आर इन, कंपनी के अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं वो हो गई, देन द डेजिग्नेशन एंड डेफिनेटली द प्रोफाइल क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सब कुछ एंड सो आर रिलेटेड। तो इस तरीके से हमारा नोटिस पीरियड होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग चले जाते हैं लीगल फैक्टर में, अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, अगर हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ इन इंडिया, तो लेट अस जस्ट गो थ्रू इट। हमारे कंट्री का स्नैपशॉट क्या है, विच इश्यूज वुड यू मोस्ट हाईलाइट टू समवन टू न्यू टू आवर कंट्री, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। मतलब ये सिंपली ये जो वेबसाइट मैं रेफर कर रही हूँ ये इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल एचआरएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग कि विच इश्यूज वुड यू मोस्ट हाईलाइट टू समवन न्यू टू अवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई न्यू होता है तो हम क्या हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और 30 to 90 days नोटिस पीरियड अप्लाइज।
इन ऑर्डर टू टर्मिनेट वर्कमैन, दिस इज टर्मिनेशन। ये जो रेजिग्नेशन कर रहा है उसके लिए नहीं, ये अगर टर्मिनेशन है, मैं अपनी इच्छा से जब रिजाइन करती हूँ दैट इज वॉलंटरी रेजिग्नेशन, और जब किसी को टर्मिनेट किया जाता है और 30 to 90 days notice period applies in order to terminate workmen as defined in the Industrial Disputes Act 1947. That is, employees whose role is not primarily supervisory, administrative or managerial for convenience, with 15 days pay for every year worked. ये आपको बता रहा है कि जब आप कोई अगर कंपनी टर्मिनेट करे अपने वर्कमैन को, वर्कमैन मतलब जो वर्कर्स हैं, दे आर नॉट इन अ सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल रोल, उनको एक 30 से 90 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू टर्मिनेट। अब इसके बाद क्या आता है, इसके संग फॉर कन्वीनियंस विद 15 डेज पर 15 डेज पे ड्यू फॉर एवरी ईयर वर्क, मतलब अगर 5 साल काम किया, इसको ग्रेचुइटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो 15 दिन का पे मिलता है ये एक्चुअली बेसिक सैलरी होते हैं, बेसिक प्लस डीए या बेसिक एज पर करंट ग्रेचुइटी जो एक्ट है उसके हिसाब से। In the case of manufacturing units, plantation and mines with 100 or more workmen, termination for convenience requires prior government approval. In other sector, it requires only government notification. यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या प्लांटेशन है या माइंस है जहाँ पे 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप अगर टर्मिनेट करते हो उन सबों को, तो आपको उसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और अदर्स में सिर्फ नोटिफिकेशन। Termination for cause does not include non-performance. It includes only behavior which qualifies as misconduct. अगर आप terminate कर रहे हो for cause does not include non-performance. इसका मतलब non-performance नहीं है, वहाँ पे performance है, ठीक है, तो आप किस basis में terminate कर सकते हो? It includes only behavior which qualifies as misconduct. The last and first out principle requires that the employer first terminate for the convenience the last people to join the organization in the same role. However, this requirement can be contracted out of when hiring for the same role. Workers who were terminated for convenience should be given the opportunity to rejoin the company. कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कभी जरूरत नहीं है तो वो स्टाफ को टर्मिनेट कर रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होगा। जो लास्ट आया पहले उसको निकालेंगे और जो फर्स्ट है वो एकदम बाद में, ऐसा लीफो फीफो मेथड। State laws generally provide for about 15 days of earned or regular leave for a year. Employees also benefit from up to 10 days of sick leave and a possible of 10 additional days of casual leave. This is generally more than what most organizations would ideally like to provide. देखो हमारे यहाँ पर जो नियम है, 15 दिन का अर्नड लीव मिलता है। अर्नड लीव को हम लोग सेव कर सकते हैं, इनकैश किया जा सकता है। 15 दिन का अर्नड लीव तुम हर साल के लिए ले सकते हो, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ अप्रैल टू मार्च, तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल में मेरे अकाउंट में, मेरे लीव अकाउंट में 15 दिन क्रेडिट हो जाएंगे लीव, ठीक है। अब वो 15 दिन की मैं छुट्टी ले सकती हूँ या तो मैं उसको जमा करूंगी तो इनकैश कर सकती हूँ। इसके अलावा सिक लीव होती है 10 दिन से 14 दिन, डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। कैजुअल लीव होती है जनरली 10 डेज, ठीक है। Most state laws provide for casual leave. The employee can opt not to come to work that day without applying for leave in advance. Many organizations find this disruptive. Casual leave का मतलब क्या होता है, वो लीव जहाँ पे employees को एडवांस में बताना नहीं होता, वो आराम से छुट्टी ले सकते हैं, जरूरत इमरजेंसी में भी छुट्टी ले लिया हमने ऐसे। Most state laws restrict women from working at night. If women are to work at night, specific approval must be obtained. This exemption is granted only to limited business sectors, example IT sectors. Further, the employer must offer a door-to-door transport and meet some social security related requirements. Most state laws prescribe overtime for any hours worked beyond 48 hours. Indian laws regulate and in some cases prohibit the use of contract workers. To engage contract workers, the contractor must hold a license and the employer must be registered as a principal employer, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा नोटिस पीरियड के बाद एक्स्ट्रा ये भी फैक्टर्स आ गया, मतलब अगर टर्मिनेशन किया जाता है वो भी फैक्टर्स आ गए।
ओके यहाँ पे कुछ कि मैटरनिटी बेनिफिट पे तो 6 महीने का है ही. इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट लॉ, व्हाट लॉज एंड रेगुलेशन गवर्न द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉज आ रहे हैं, हम लोग उतने पे नहीं जा रहे हैं. हम लोग नोटिस पीरियड का और थोड़ा सा एक बार डिटेल्स में देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं एक्स्ट्रा. What is notice period? ये I think ये clear है तुमको. It's worth nothing that an employer can terminate a contract without notice if the dismissal is due to gross misconduct. An employer can also choose to make you leave earlier than what your contract say. Note that if this happens, you may be able to claim unfair dismissal. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है तो आप इसके लिए मतलब ये कर सकते हो. अगर जल्दी छोड़ने के लिए बोल रहा है आप अपने एक डिसमिसल के लिए क्लेम कर सकते हो. ठीक है. हाउ मच नोटिस डू आई नीड टू गिव? नोटिस देने का तो ये समझ गए हो 30 डेज 60 डेज 90 डेज. दिस इज एज पर द लॉ में भी इतना ही है. अब यहाँ पे और बहुत सारे लीव्स हैं. लीव के बारे में दिया गया जो हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. इंडिया में गार्डन लीव एंड ऑल इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. दिस वाज अबाउट नोटिस पीरियड. इसके अलावा और कुछ नहीं है. एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है तुझे? नो मैम. क्लियर है ना? या और कुछ है जानना? नो नो मैम. तो ये आर्टिकल्स ऐसे